We are going to learn about the mechanism of muscle contraction today. So, see the structure. This is the actin structure, you can say, and this one is the myosin structure. तो हमने पिछले लेक्चर में आपसे पहले जो लेक्चर हमने लिया हुआ था, उस लेक्चर में हमने देखा होता स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. तो एक्टिन और मायोसिन ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन थे, हमने डिटेल में स्टडी किया होता. आज हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली हमारे मसल्स वर्किंग कैसे करते हैं, हमारे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कैसे होता है. ये देखिए मैं आपको एक सिंपली बताता हूँ. नाउ दिस इज आवर मसल्स. या दिस वन इज बाइसेप्स मसल, दिस वन इज ट्राइसेप्स मसल. So when we are undergoing this contraction, how actin and myosin plays important role in this mechanism, that we are going to discuss today. ठीक है, तो रेडी हो जाइए आप लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन समझने के लिए. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का. और कोई भी कैंडिडेट आप स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, जरा सा भी पॉज मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा. और अगर आपके पास में एनसीईआरटी की बुक हो तो उसे भी साइड में रख दीजिए, बाद में आप पढ़ लेना या तो पहले पढ़ लेना चाहिए आपको. अब यहाँ पे सिर्फ लेक्चर में ध्यान दीजिए, एकदम इजीली समझ जाएगा. पहले आप मुझे बताइए कि आपको एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर क्लियरली दिखाई दे रहा है. रिप्लाई दीजिए मुझे फास्टली. आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्लियरली? अदरवाइज मैं कैमरा थोड़ा और आगे बढ़ाऊं. कम ऑन, कैन यू सी द डायग्राम क्लियरली? Come on guys, fast, don't have much time. ओके, क्लियर है ना? चलो, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट गाइस. So we are going to discuss about the mechanism of muscle contraction from the chapter number 20, locomotion and movement, from the 11th standard CBSE. Let's start. Yes, mechanism of muscle contraction. Let's start the topic. See, this one is the actin protein and this lower one is the myosin protein. Actin protein and myosin protein. मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया था आपको कुछ याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ. ठीक है, वो मैं आपको यहीं पे बताता हूँ. See, in our last lecture we discussed that there is one actin protein and there is one myosin protein. Actin protein, in last lecture we discussed there is one actin protein and there is one myosin protein. मैं यहाँ पे बताता हूँ क्योंकि ये वाली स्पेस में इस वाले टॉपिक में यूटिलाइज करूंगा. एक्टिन प्रोटीन इज अ थीन प्रोटीन. व्हाट? एक्टिन इज थीन प्रोटीन and myosin is thick protein. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक्टिन या थीन प्रोटीन होता है, मायोसिन थिक प्रोटीन होता है. एक्टिन प्रोटीन दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन से बना होता है. एक्टिन प्रोटीन इज फर्दर मेड बाय टू सब टाइप ऑफ प्रोटीन. वन इज अ जी प्रोटीन एंड सेकंड वन इज एफ प्रोटीन. जी प्रोटीन स्टैंड फॉर, याद होगा आपको तो बताइए. जी प्रोटीन स्टैंड फॉर ग्लोबुलर प्रोटीन and F protein stand for filament protein. This F protein is further divided into these two categories. One is a troponin which is located on the tropomyosin. This red color train like structure I have drawn, that is a tropomyosin, and just above that there is a troponin, and this globular structure is F actin protein. Remember, F actin protein is covered by the tropomyosin and tropomyosin is locked by the troponin protein. Okay, this is the myosin protein. Myosin protein has a head region, it has a cross arm and then long tail. There are two sides where actin protein will bind on the myosin and there are two sides where ATP molecule will bind on the myosin protein. Let's look towards this topic. One more thing I would like to tell you. Myosin protein is further made by the meromyosin, and this meromyosin was having two categories, HMM, LLM. LLM stand for light meromyosin, HMM stand for heavy meromyosin. और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो मसल्स होते हैं
Like just imagine this one is the one muscle cell. This one is one muscle cell. So this will be called sarcoplasm. I hope so आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने पूरा व्हाइट बोर्ड कवर कर दिया हुआ है कैमरे में. This one is sarcoplasm. This one is called sarcolemma. What is sarcolemma? Cell membrane of a muscle fiber. Cell membrane of a muscle cell or muscle fiber is called sarcolemma, and cytoplasm is called as a sarcoplasm. Sarcoplasm. This is sarcolemma, and this one is sarcoplasm. And inside that there will be endoplasmic reticulum. We will call sarcoplasmic reticulum. ये पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन अब मैं 2 दिन का बीच में गैप आ गया, इसके लिए मैं आपको ये रिकवर कर रहा हूँ. ये जो जनरली फ्राइडे तक जो सीरियल खत्म हो जाती है, मंडे पे कहते हैं ना, अब तक हमने देखा, तो ये अब तक हमने देखा जैसा ही था. तो अब तक हमने यहाँ तक देखा था. अब हम आगे बढ़ते हैं. मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. यस, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन बी स्टडीड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. हमेशा याद रखिए, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन बी स्टडीड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी. स्लाइडिंग फिलामेंट का मतलब क्या है? स्लाइड करना मतलब एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप होना, ऐसा स्लाइड करना. Mechanism of muscle contraction can be best studied by the sliding filament theory. And what does sliding filament theory says? Sliding filament theory says that mechanism of muscle contraction takes place by sliding of thin filament on thick filament. अब ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस आप प्रॉपरली माइंड में सेट कर लीजिए. अगर ये वाला सेंटेंस समझ गए आप लोगों को, तो आगे का जो मैकेनिज्म है आप लोगों के सामने इजी हो जाएगा. जैसे हम एक जगह पर जा रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं, लेकिन अगर हमारे पास अगर जीपीएस हो तो हमें पता चल सकता है कि कितनी क्राउड है बीच में, रास्ता कैसा होगा, टर्न है या नहीं. ठीक है, सेम वे आगे का टॉपिक समझने के लिए हमें ये वाली लाइन समझना काफी इंपॉर्टेंट है. ये देखिए, mechanism of muscle contraction can be studied by sliding filament theory. ठीक है, अब यहां देखिए, sliding filament theory says that mechanism of muscle contraction takes place by sliding of thin filament. Where is thin filament? This actin protein is the thin protein. मैंने आपको क्या कहा? एक्टिन प्रोटीन thin protein है ना, तो यहाँ पे कहा है जब एक्टिन प्रोटीन, मतलब यहाँ पे कहा है जब थिन प्रोटीन थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेगा तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा. अब यहाँ पे थिन फिलामेंट कौन सा दिख रहा है आपको दिख रहा है थिन फिलामेंट, दिख रहा है एक्टिन. और थिक फिलामेंट कौन सा दिख रहा है? थिक फिलामेंट दिख रहा है मायोसिन. तो सिंपली ये कहा गया है कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? जब थिन प्रोटीन यानी एक्टिन प्रोटीन थिक प्रोटीन के ऊपर, मतलब मायोसिन प्रोटीन के ऊपर स्लाइड करेगा तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा. अब मेरे हाथ में ये 2 हाथ देखिए. ठीक है, ये वाला जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो मायोसिन प्रोटीन है. अब ये वाला जो मेरा राइट हैंड है वो है एक्टिन प्रोटीन. तो जब मैं एक्टिन प्रोटीन को मायोसिन प्रोटीन के ऊपर ऐसा स्लाइड करूंगा तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा. मतलब ये जो मेरे मसल्स हैं, इस मसल्स में एक्टिन प्रोटीन भी है, मायोसिन भी है. जब एक्टिन प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन के ऊपर ऐसा स्लाइड करेगा तब जाके क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा. और मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म लगता है. वो मैकेनिज्म मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, ये उसका इंट्रोडक्शन था.
और इंट्रोडक्शन अगर हमें समझता है तो ये हम आगे जाके इजीली समझ सकते हैं। ये देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट ऑटोमेटिक, muscle contraction does not takes place automatic. You know why? Because muscle contraction takes place by the skeletal muscle especially. No doubt other muscle also plays important, but I am going to right now tell you about muscle contraction of a you can say skeletal muscle, and skeletal muscles are controlled by our central nervous system. एक नर्व होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे मसल तक लेके आती है, जिसे हम कहते हैं मोटार नर्व या तो मोटार न्यूरॉन, और वो मसल फाइबर के साथ बाइंड होती है जिसे हम कहते हैं मोटार यूनिट। यस, और जब मोटार यूनिट और सार्कोलेमा दोनों आपस में जुड़ते हैं तब हम उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या तो मोटार एंड प्लेन। आई नो दैट स्टार्टिंग में सब शब्द सुनने में आपको डिफिकल्टी जाएगी, लेकिन मैं उसे सिंपल कराऊंगा क्योंकि वही तो काम है ना मेरा। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। सी, mechanism of muscle contraction takes place by when sliding of a thin protein, means when sliding of an actin protein takes place on a thick protein such as a myosin protein. That time actin and myosin undergo contraction, means muscle undergo actually contraction. Now listen, for contraction of muscle, command comes from central nervous system via motor neuron. अब ये कंसेप्ट समझ लीजिए। ये देखिए, फॉर द कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए जो कमांड आती है, मैसेज आते हैं, वो मैसेज कहां से आते हैं? वो मैसेज आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। मैसेज कहां से आते हैं? थोड़ा कैमरा यहाँ मूव कर देता हूं। यस, मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए जो मैसेज आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन के मैसेज आते हैं, वो कहां से आते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन में से। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से कौन से न्यूरॉन मैसेज को लेके आते हैं? तो न्यूरॉन का नाम है मोटर न्यूरॉन। मैंने आपको पहले ही कहा था ये टॉपिक समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये मेरी ड्यूटी आपको इजीली करके बताऊं। तो इजीली करने के लिए मुझे दो तीन बार यही चीजें रिपीट करनी पड़ेंगी गाइस, तब जाके आपके माइंड में प्रॉपर सेट होगा, और मैं सेट करवा के ही रहूंगा। यस, थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। डायरेक्टली 1 सेकंड में 2 मिनट में नहीं समझ में आ जाएगा, आपको टाइम लगेगा ये समझने में। तो देखिए, फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल कमांड कम्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया विच न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन। देखो न्यूरॉन है ना 3 प्रकार के होते हैं। जो न्यूरॉन हमारे मसल से मैसेज मतलब हमारे ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं उनको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और जो न्यूरॉन ब्रेन में से हमारे ऑर्गन तक मैसेज रिप्लाई देते हैं, कमांड देते हैं, उनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। और जो न्यूरॉन दोनों काम कर सकते हैं हम उनको कहते हैं बोथ न्यूरॉन, या तो इंटरमीडिएट न्यूरॉन या तो मिक्स न्यूरॉन। ठीक है, तो अब हमें क्या है, मैकेनिज्म के ऊपर रिप्लाई चाहिए ना, तो रिप्लाई कौन देगा? रिप्लाई देगा मोटर न्यूरॉन। क्लियर हो गया? अब ये देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज कहां पे लेके आता है? मसल फाइबर की तरफ लेके आता है। कहां पे लेके आता है? मसल फाइबर की तरफ लेके आता है। अब ये देखिए, मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर, मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर टुगेदर व्हाट वी कॉल्ड मोटर यूनिट। इन दोनों को हम साथ में क्या कहते हैं? मोटर यूनिट। ये देखिए गाइस, धीरे धीरे स्टार्टिंग से चलिए। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन बी टेक्स प्लेस व्हेन एक्टिन प्रोटीन स्लाइड ओवर द मायोसिन प्रोटीन। यस, क्लियर? Mechanism of muscle contraction start from central nervous system. When central nervous system transfer the command message via motor neuron to the muscle fiber. So motor neuron plus muscle fiber together it is called motor unit. Motor neuron plus muscle fiber together it is called motor unit. Motor neuron और muscle fiber इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? मोटर यूनिट। अब आप सोचोगे कि मसल फाइबर कहां से है? ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैसेज आ रहे हैं वो कहां पे आ रहे हैं? वो कहां पे आ रहे हैं? मसल सेल के ऊपर आ रहे हैं ना।
ठीक है, मसल सेल के ऊपर आ रहा है और मसल सेल को ही हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं। मसल सेल को ही हम कहते हैं मसल फाइबर। और जब मसल फाइबर और मोटर यूनिट आपस में ज्वाइंट होते हैं तो उस कंसेप्ट को, उस फिनोमिनन को हम कहते हैं मोटर यूनिट। क्या कहते हैं उसे कहते हैं मोटर यूनिट। अब आगे देखिए, अब आप आगे देखिए, क्लियरली ये समझ लीजिए। मैं मार्कर बदल लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जंक्शन बिटवीन, जंक्शन का मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग पॉइंट। जैसे दो लोगों का मतलब, इन द सेंस हम कह सकते हैं कि नदी है और एक समुद्र है, मींस देयर इज वन सी एंड देयर इज वन रिवर। व्हेन सी एंड रिवर्स आर गेटिंग कोलाइडिंग विथ ईच अदर, व्हेन दे आर मिक्सिंग विथ ईच अदर, दैट विल बी कॉल्ड जंक्शन पॉइंट। सो जंक्शंस बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा, जंक्शंस बिटवीन मोटर neuron and sarcolemma, junction between the motor neuron and sarcolemma is called motor end plate. It is basically called motor end plate, also known as also called न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहते हैं उसे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या तो मोटर एंड प्लेट। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, देखिए ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये जो दोनों कंसेप्ट है ना, वो एक जैसे ही हैं। आप समझ नहीं पा रहे हो शायद। ये देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रिंग द मैसेज वाया विच न्यूरॉन, motor neuron. Correct. Central nervous system send the message, bring the message via which neuron, motor neuron. Now this motor neuron plus muscle fiber, motor neuron plus muscle cell means muscle fiber, together it is called motor unit. अब अगर मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर के अंदर जाती है तो सबसे पहले वो किसको कनेक्ट करेगी, किसको टच करेगी? गाइस रिमेंबर गाइस, This is the muscle fiber. This is the muscle fiber. तो मसल फाइबर के अंदर जाने के लिए सबसे पहले वो किसे कनेक्ट करेगी? सेल मेम्ब्रेन को ना। और सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, याद कीजिए, जल्दी से याद कीजिए। उसे हम क्या कह रहे हैं, कहा हमने उसे कहा है सार्कोलेमा। जैसे नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मोलेमा कहते हैं, तो मसल फाइबर में हम उसे क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। तो यहाँ पे देखिए, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर यूनिट और मसल फाइबर से ज्वाइंट होते हैं तब उसे कहते हैं मोटर यूनिट। नाउ जब मोटर न्यूरॉन जब सार्कोलेमा मतलब मसल फाइबर के आउटर लेयर से बाइंड होते हैं, जब मसल फाइबर के आउटर लेयर से बाइंड होते हैं, मतलब मोटर न्यूरॉन ये वाला हो गया और प्लस ये सार्कोलेमा मतलब ये मसल फाइबर। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। ये देखिए, ये है हमारा ब्रेन। ठीक है, ये हमारा ब्रेन, और ब्रेन में से ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन आ रहा है वहां से, मोटर न्यूरॉन आ रहे हैं। मोटर न्यूरॉन कहां पे आ रहे हैं, ये हमारे मसल सेल के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, और मसल सेल में ये क्या है, ये हमारा सार्कोलेमा। सार्कोलेमा का मतलब क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल इज कॉल्ड एज अ सार्कोलेमा। तो ये देखिए, ब्रेन में से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से मोटर न्यूरॉन कहां आ रहे हैं, कम ऑन गाइस, सब लिखना पड़ेगा क्या मुझे, मोटर न्यूरॉन कहां आ रहे हैं, मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर के सार्कोलेमा मतलब आउटर कवरिंग पे आ रहे हैं। और जब मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा आपस में ज्वाइंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मोटर एंड प्लेट, ऑल्सो नोन एज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। गाइस नीट में पूछे जाने वाली कंसेप्ट, ये टीचर का सिक्स्थ सेंस है। ठीक है, इतने साल का अनुभव, इतने साल का एक्सपीरियंस है हमारा, हमें पता होता है कि कौन सी चीजें प्रोबेबिलिटी बनती है आने की। ऐसी चीजें को नोट डाउन कीजिए, मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर टुगेदर इट इज कॉल्ड मोटर यूनिट, मोटर न्यूरॉन प्लस sarcolemma together it is called motor end plate, also known as a neuromuscular junction। मैंने क्लियरली यहाँ पे लिख दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट निकालो, पोस्ट करो, जो करना है करो, आपके नोटबुक में होना चाहिए। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया अब यहां तक का। अब आप ये देखिए, एक्टिन प्रोटीन मायोसिन के ऊपर कैसे बाइंड होगा,
अब आप ये देखिए, मान लो मेरे हाथ दोनों एक चेन से बंधे हुए हैं, मेरे हाथ, ये समझ लीजिए ये एक्टिन प्रोटीन है, सॉरी ये मायोसिन प्रोटीन है, ये एक्टिन प्रोटीन है, और ये मेरा हाथ एक चेन से बंधा हुआ है। ये मेरा हाथ क्या है? ये मेरा हाथ है एक्टिन प्रोटीन, और इसके ऊपर एक चेन बंधी हुई है। वो चेन क्या है? वो चेन है ट्रोपोमायोसिन, और वो चेन के ऊपर एक लॉक लगा हुआ है। उस लॉक को क्या कहोगे आप? ट्रोपोनिन। तो मैं इस एक्टिन प्रोटीन को उस मायोसिन प्रोटीन के ऊपर तभी रोटेट कर पाऊंगा, तभी स्लाइड कर पाऊंगा, जब मैं इसके ऊपर की क्या निकालूंगा? चेन निकालूंगा। और ये चेन तभी निकलेगी जब मैं इसके ऊपर का क्या निकालूंगा? लॉक। मतलब क्या निकालूंगा? ट्रोपोनिन। तो पहले ट्रोपोनिन को निकालना पड़ेगा। तो लॉक को ओपन करने के लिए क्या लगती है? चाबी लगती है। चाबी लगती है ना? यस, सेम वे यहाँ पे ट्रोपोनिन को ओपन करने के लिए क्या लगेंगे हमें? कैल्शियम आयन लगेंगे। और कैल्शियम आयन कहां से प्रोड्यूस होंगे? ये देखिए, मोटर न्यूरॉन प्लस सार्कोलेमा टुगेदर इट इज कॉल्ड मोटर एंड प्लेट, ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब मैसेज कहां जाएंगे? मैसेज जाएंगे सार्कोप्लाज्मा में, मतलब मसल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। और वो क्या रिलीज करेगा? वो रिलीज करेगा कैल्शियम आयंस। ये क्या रिलीज करेंगे? ये कैल्शियम आयंस रिलीज करेंगे। अब ये कैल्शियम देखो कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? ये कैल्शियम आयन यहां आ गए, ये कैल्शियम आयन यहां आ गए, और ये कैल्शियम आयन यहां आ गए। when motor neuron plus sarcolemma connect with each other, it is called motor end plate, also called neuromuscular junction. This message goes inside the sarcoplasm and ultimately activate the calcium ion. Now this calcium ion come out and they bind to the troponin, which we call lock in our example. मैंने जो आपको एग्जांपल बताया उसमें मैंने क्या कहा? ये मेरा हाथ है एक्टिन प्रोटीन, और उसके ऊपर चेन बंधी है जो है ट्रोपोमायोसिन, और उसके ऊपर लॉक लगा हुआ, ताला लगा हुआ है, वो लॉक है ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन लॉक को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चाबी लगेगी उसके लिए, चाबी। और वो चाबी क्या है हमारी बायोलॉजी में? कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन यहां से निकल गए। अब ये कैल्शियम आयन यहां पे जाते हैं और इनको रिमूव कर देते हैं। इनको रिमूव करना मतलब क्या करना? अनमास्किंग करना, अनमास्किंग। जब ट्रोपोनिन आयन वहां पे अवेलेबल थे तो हमने उसे क्या कहा था? मास्किंग। जब ट्रोपोनिन आयन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर होते हैं ना, तब हम उसे कहते हैं। शायद आप लोगों को काफी स्टूडेंट को लगा होगा कि सर है ना कितने हार्ड वर्ड यूज। अरे यार मैं कोई भी हार्ड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सब सिंपल ही वर्ड यूज कर रहा हूं। लेकिन एनसीईआरटी में जो शब्द दिए हुए हैं उनको तो सिंपल। अभी ट्रोपोनिन का मैं क्या कन्वर्ट कर लूंगा? ट्रोपोमायोसिन को मैं दूसरा शब्द का यूज करूंगा। मैं आपको समझाने के लिए लॉक और चेन तो यूज कर रहा हूं, और मैं शब्द कैसे बदलूं? समझ रहे हो? एनसीईआरटी के शब्द नहीं बदले जा सकते। मैं यहाँ पे कितने भी बदल लूं, नीट वाले वो नहीं बदलेंगे, वो ऐसे के ऐसे ही शब्द पूछेंगे। डॉक्टर बनना है तो आपको यही याद रखना पड़ेगा। हो गया क्लियर? तो ये देखिए हमने जैसे ट्रोपोनिन रिमूव कर दिया कैल्शियम आयंस के थ्रू, और जैसे ही ट्रोपोनिन रिमूव हो जाता है, जैसे ही ट्रोपोनिन रिमूव हो जाता है, ये जो ट्रोपोमायोसिन है ना, ये जो ट्रोपोमायोसिन है वो भी खुल जाती है। अगर मैंने यहां से चाबी लगा के लॉक ओपन कर दिया तो क्या होगा? चेन भी तो खुल जाएगी। जैसे ही चेन खुल जाएगी तो डायरेक्टली जो मेरा एक्टिन प्रोटीन है वो फ्री हो जाएगा। अभी क्या करेगा? स्लाइड करेगा। कहां पे? मायोसिन पे। और मायोसिन पे भी कहां पे? उसकी साइट है, देखो एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये साइट है ना। तो as the calcium ion binds to the troponin, they remove the troponin, which we called unmasking. Means removal of troponin protein is called unmasking, and then this tropomyosin also get released, and ultimately now this actin protein comes on the myosin protein, slide on the myosin protein. At which side? एक्टिन बाइंडिंग साइट। अब देखो हमने क्या कर लिया? हमने एक्टिन प्रोटीन को मायोसिन के ऊपर स्लाइड तो कर लिया, तो अब कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए ना, लेकिन फिलहाल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्शन? आपके साइकिल में दोनों पहिए डाल दिए आपने, लेकिन साइकिल चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। आपको उसे पैरों से मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। सेम वे अब हमें एनर्जी की जरूरत है। कौन सी एनर्जी की? बायोलॉजी में एनर्जी मतलब कौन? एटीपी मॉलिक्यूल गाइस। तो एटीपी मॉलिक्यूल कहां बाइंड होंगे? एटीपी बाइंडिंग साइट यहां पे। तो जैसे ही
एक्टिन प्रोटीन मायोसिन के ऊपर बाइंड हो जाता है तो यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं, और जैसे यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं तो फिर क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। यस, फिर हमारा ये मसल कॉन्ट्रैक्शन है। अब मैं यहाँ पे ना पूरा डेमो यहाँ पे देता हूँ। हाँ, पूरा डेमो देखिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम gives the commands to the muscle cell via which neuron? Via motor neuron. Now this motor neuron connects to the muscle fiber. Together we call motor unit. Now this motor neuron plus sarcolemma means मसल फाइबर का जो आउटर लेयर है ना, उसे हम कहेंगे सार्कोलेमा। मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर, कॉल्ड मोटर यूनिट। Now motor neuron plus sarcolemma together it is called neuromuscular junction or motor end plate. Now this message goes inside the cytoplasm, but now we called sarcoplasm because हम muscle fiber के बारे में बात कर रहे हैं, sarcoplasm. Now this sarcoplasm get activated and release which ions? Calcium ion, and this calcium ion now binds to troponin protein. They remove the troponin protein, means calcium ion is one type of a key which open the lock. So once lock is open, troponin proteins are removed, then tropomyosin also get released, and once it get released, actin protein becomes a free and it slide on the myosin. But right now muscle cannot undergo contraction, there is a need of energy also, and that energy is the ATP molecule. Now ATP molecule will bind on this ATP binding site and muscle contraction will take place, and I will do like that. अब आप सोचो जिम में लोग कंटिन्यूअसली डंबल्स उठाते रहते हैं, तो आप सोचो ये एक्टिविटी होती है क्या? नहीं, ये एक्टिविटी होती है। और जब ऐसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना, तब ए बैंड मतलब एनिसोट्रोपिक बैंड और आई बैंड, इन दोनों में आपस में चेंजेस होते रहते हैं। और अगर ये मसल थक जाते हैं और यहाँ पे अनएरोबिक एनवायरनमेंट फॉर्म होता है, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। लैक्टिक एसिड, कुछ ऐसे मसल होते हैं हमारे बॉडी में जो काफी अगर थक जाते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है अनएरोबिक एनवायरनमेंट में। क्लियर हो गया? अब हमें ये देखना है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन फिर से रिवर्स कैसे किया जाए। मतलब अगर मुझे मसल कॉन्ट्रैक्शन करना था तो मैंने ऐसे किया, लेकिन अगर मुझे मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है तो मुझे फिर से रिवर्स में कैसे जाऊंगा मैं? तो रिवर्स में कैसे जाएंगे? When we wanted to do muscle contraction we can do, but when we wanted to stop this, how we can stop? So first ATP flow towards ATP binding will be stopped, and once ATP flow will be stopped, ATP will be stopped, so ATP will get converted into ADP. Here also ATP will get converted into ADP. You know ADP, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट निकल जाता है, जैसे एक फॉस्फेट निकल जाता है तो कैल्शियम आयन फिर से आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं कैल्शियम आयन जो वहां पे गए थे ट्रोपोनिन को रिमूव करने, वो कैल्शियम आयन वहां से निकल जाते हैं, और जैसे कैल्शियम आयन वहां से निकल जाते हैं तो वहां पे फिर से क्या हो जाते हैं, बाइंडिंग लॉक लग जाता है। क्या लग जाता है? लॉक मतलब क्या लग जाता है? मास्किंग हो जाती है वहां पे, मास्किंग। और मास्किंग होने के कारण क्या होता है, ट्रोपोनिन फिर से आ जाता है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को लॉक करता है और ट्रोपोमायोसिन एक्टिन प्रोटीन को लॉक कर देता है। इस प्रकार से पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और ऐसे ही वर्किंग करता है। सो गाइस, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप